کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ اب جو ڈسکشن آج ہوئی ہے وہ بڑی ٹیکنیکی ڈسکشن تھی، مگر انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگلے ہفتے یہ کیس اپنے اختتام کو پہنچے گا اور روزانہ کارروائی کی بنیاد پر جو صبح 9 سے لے کر 1:30 بجے تک ہوگی، اور انشاءاللہ بہت جلد قوم جس سچ کا انتظار کر رہی ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ آج کی تفصیلات کے لیے فواد آپ کو بتائیں گے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو کچھ معاملات جو زیر بحث آئے ہیں وہاں سے شروع کر لیتے ہیں، پھر ججز کی جو آبزرویشن تھی اور کس طرح سے کیس آگے چلے گا اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر جو آج بات رہی ہے وہ 3 بنیادی ایشوز کے اوپر رہی۔ سب سے پہلے تو یہ رہی کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بینیفیشری اونر ہیں منروا کی، جو کمپنی نیلسن اور نیسکول کو اون کرتی ہے، جو آگے ان اپارٹمنٹس کو جو پراپرٹیز ہیں 16 اور 17 ایون فیلڈ ہاؤس اس کو اون کرتی ہے۔ لہٰذا مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ کہنا کہ وہ ٹرسٹی ہیں اور بینیفیشری نہیں ہیں، وہ ایک ہم نے اپنی ڈاکومنٹس آج جمع کرا دی، سارا ثبوت جمع کرا دیے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ نہیں ہے۔ دوسرے ایشوز جن کے اوپر ابھی بات شروع ہوئی ہے وہ ایک یہ ہے کہ 74 کروڑ روپیہ نواز شریف صاحب کے بچوں نے ان کو گفٹ کیا، جس کے اوپر کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا گیا۔ چیئرمین نیب کی ریموول کی ہم نے اسپیسیفک پلی کی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو یہ بینچ ریفرنس بھیجے، کیونکہ چیئرمین نیب نے مل کے کھیلا ہے اور اس معاملے میں موزیک فونسکا کے معاملے میں اور جو منی لانڈرنگ کے معاملات میں وہ حکومت کے ساتھ مل کے انہوں نے کھیلا ہے وزیر اعظم اور ان کی فیملی کو بچانے کے لیے، لہٰذا ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس بھیجا جائے۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات جس کے اوپر آج بات شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حسن نواز شریف صاحب نے کس طرح بلینز آف روپیز کا، اربہ روپے کا، ملینز آف پاؤنڈز کے بزنسز شروع کیے لندن میں 2001 اور 2005 کے درمیان، جبکہ 1999 میں ان کا اپنا کہنا تھا کہ وہ ایک طالب علم ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ سوالات تھے جن کے اوپر بات ہوئی۔ اب آج یہ کہ مریم نواز شریف بی بی کے اوپر آج جو گفتگو ہوئی زیادہ تفصیل، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آج یہ ڈاکیومنٹس جو پیش کیے وہ یہ بتاتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ یہ شروع ہوا 6/5/2012 کو، کہانی شروع ہوتی ہے 2008 سے۔ 2008 میں برٹش ورجن آئی لینڈ کے قانون میں تبدیلی ہوئی اور یہ بات طے ہوئی، مانگا گیا کہ ڈائریکٹرز کے نام، کیونکہ ٹیررزم کے معاملات تھے تو یہ طے کیا گیا کہ ایف آئی اے آف شور کمپنیز کے جو مالکان ہیں، جو ڈائریکٹرز ہیں، ان کے ناموں سے اپ ڈیٹ رہے گی۔ لہٰذا 6/5/2012 کو موزیک فونسکا کو برٹش ورجن آئی لینڈ ایف آئی اے نے ایک لیٹر لکھا، ایک ای میل جنریٹ کی اور ان سے کہا گیا کہ 7 دنوں کے اندر منروا کمپنی کے اصل بینیفیشل اونر یعنی اصل مالک کا نام، ان کا ایڈریس اور جہاں پہ ان سے کمیونیکیٹ ہو سکے، رابطہ ہو سکے، وہ فوراً فراہم کیا جائے۔ 7 دن کے اندر یہ نام نہیں دیا گیا۔ 8ویں دن ایک ای میل دوبارہ جنریٹ ہوئی 21 جون 2012 کو، جس میں یہ بتایا گیا کہ منروا کے ساتھ کوئی ٹرسٹ ایفیلیٹڈ نہیں ہے، یعنی کوئی ٹرسٹ اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہے۔ ایک دن کے بعد 22 جون 2012 کو یہ ہوشربا انکشاف اس کیس کا ہوا، جس میں موزیک فونسکا نے بتایا برٹش ورجن آئی لینڈ کی ایف آئی اے کو، یعنی برطانوی ایف آئی اے کو، موزیک فونسکا نے ان کی کوئری کا یہ جواب دیا کہ منروا کی مالک صرف اور صرف مریم نواز شریف ہے۔ سونامی آ گیا اور 22 جون 2012 کو
ये होशरबा इंकशाफ FIA के सामने आया मोज़ैक फिनेस्का का कि मिनर्वा कंपनी जो कंट्रोल करती है नीलसन और नेस्कोल को, उसकी वाहिद मालिक मरियम नवाज शरीफ है। हमारी दूसरी दलील ये थी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा इतने पैसे नहीं है उनके पास कि वो ये प्रॉपर्टीज होल्ड कर सकती, कंट्रोल कर सकती, जबकि यह साबित हो गया कि मिनर्वा की वो मालिक है और इन प्रॉपर्टीज की मालिक असल में मिनर्वा है। मरियम नवाज शरीफ बीबी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ये सब कर सकती, लिहाजा क्योंकि 2012 में अगर आप देखें तो उनको 5 करोड़ 16 लाख रुपए वजीर आजम नवाज शरीफ साहब प्रेजेंट किए, 2013 में 3 करोड़ रुपए प्रेजेंट किए, चौधरी शुगर मिल से 2011 में 4 करोड़ 30 लाख रुपए उन्हें मिले, हसन नवाज साहब ने उन्हें 2 करोड़ 89 लाख रुपए जो है वो लोन दिया। जो तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं मरियम नवाज शरीफ बीवी की, वो बुनियादी तौर के ऊपर वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द घूमती हैं और ये बात तयशुदा है कि मरियम नवाज शरीफ के पास अपने पैसे नहीं थे, नवाज शरीफ साहब के पैसे थे जिनको इस्तेमाल करके मिनर्वा कंपनी में लगाए गए और ये प्रॉपर्टीज जो है खरीदी गई। मरियम नवाज शरीफ दरअसल नवाज शरीफ साहब की बेनामी है और मरियम नवाज शरीफ की आगे जो फ्रंट है वो मिनर्वा है और मिनर्वा की आगे जो फ्रंट है वो नीलसन और नेस्कोल है जो ये प्रॉपर्टीज ओन करती हैं। जज साहब ने जो ऑब्जर्वेशंस दी उन्होंने ये फरमाया है कि मुकम्मल सच तक पहुंचने के लिए अदालत कोई भी तरीका इख्तियार कर सकती है। और अभी आपको खबर दें कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के इत्तफाक अस्पताल आमद वजीर आला ने मौलाना फजलुर रहमान की इयादत की है और वजीर आला का मौलाना फजलुर रहमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आपको आगाह कर रहे हैं कि वजीर आला पंजाब ने मौलाना फजलुर रहमान की इयादत की है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है मौलाना फजलुर रहमान के लिए वजीर आला पंजाब की तरफ से। वजीर आला पंजाब की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनकी इयादत की। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तफाक अस्पताल वो पहुंचे और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की इयादत की। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान के लिए वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की इत्तफाक अस्पताल आमद, वज़ीर आला ने मौलाना फजलुर रहमान की इयादत की है। मौलाना फजलुर रहमान इत्तफाक अस्पताल में है जहां पर उनका कामयाब ऑपरेशन किया गया है और वज़ीर आला की तरफ से उनकी इयादत की गई है। मौलाना फजलुर रहमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। फराज निजाम हमारे साथ मौजूद हैं। फराज, आगाह कीजिएगा, इयादत की गई है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल लुकमान है। ये गुज़िश्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर के इत्तफाक अस्पताल में पित्ते का ऑपरेशन हुआ था। आज वज़ीर आला पंजाब उनकी इयादत करने के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के साथ कई मिनट वहां पर गुजारे हैं और उनकी इयादत की है और उनका ये कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान जो है ऑपरेशन उनका कामयाब हुआ। इसके ऊपर उन्होंने मुबारकबाद देते हुए कहा कि जल्द अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कहा जा रहा है कल उनको छुट्टी दे दी जाएगी डॉक्टर की जानिब से। डॉक्टर ने कहा कि अब उनकी सेहत जो है वो बेहतर है और घर जाकर आराम करें। जी शुक्रिया फराज, आपने अपडेट किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे शहर कायद के हवाले से। थाना तैमूरिया में दस्ती बम हमले और 5 स्टार पर मुबैना फायरिंग के वाक़े पर IG सिंध AD ख्वाजा ने नोटिस देते हुए DIG वेस्ट से रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद की जानिब से थाना तैमूरिया पर दस्ती बम हमले और 5 स्टार पर मुबैना फायरिंग का वाक़या पेश आया। वाक़े में 2 पुलिस एहलकार जख्मी जबकि एक राहगीर अली इमरान जख्मों की ताब न लाते हुए जाम बहक हो गया था। मीडिया पर खबर नशर होने पर IG सिंध AD ख्वाजा ने DIG वेस्ट जुल्फकार से दस्ती बम हमले और फायरिंग के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मर्दान से आपको खबर दें, थाना तख्त बाई की हदूद में पुलिस का सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन के दौरान 21 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 2 क्लैशनकोफ, 2 शॉटगन और 21 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं मर्दान से, थाना तख्त बाई की हदूद में पुलिस ने सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किया है। खालिद उर रहमान से तफसीलात जानेंगे। खालिद, आगाह कीजिएगा इस ऑपरेशन से मुतालिक।
जी बिल्कुल, ये मर्दान पुलिस ने जराइम पेश और शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मुश्तरका सर्च स्ट्राइक ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 200 से ज्यादा घरों की तलाशी ली गई है। ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ साथ BDS, लेडीज पुलिस और सुराग रसा कुत्तों की टीमों ने भी हिस्सा लिया है। ताहम घर घर तलाशी के दौरान 21 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनके कब्जे से असला और मंशियात भी बरामद कर ली गई है। ताहम तमाम गिरफ्तार अफराद को थाना 21 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। शुक्रिया खालिद, आपने अपडेट किया। एक और अहम खबर शामिल करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में शर्जील इनाम मेमन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत, हिफाजती जमानत में तोसी के मुतालिक समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अहम खबर आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में शर्जील इनाम मेमन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई और हिफाजती जमानत में तोसी के मुतालिक समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इरफान से। इरफान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में शर्जील इनाम मेमन की दरख्वास्त जमानत से मुतालिक जो है आज समाअत हुई थी। अदालत में जो है शर्जील इनाम मेमन के वकील का कहना था कि शर्जील इनाम मेमन जो है 28 जनवरी को मुल्क वापस आएंगे, जबकि इस हवाले से उनकी जानिब से जो टिकट भी अदालत में जमा कराई थी, जिस पर अदालत ने बरामी का इज़हार करते हुए कहा था कि अब मजीद जो है तौसीक नहीं की जाएगी। शर्जील इनाम मेमन की पहले ही मुतअद्दिद बार जो है वो तौसीक की जा चुकी हुई है, जबकि जो उन्होंने ज़र जमानत 15 लाख जमा कराए हुए थे वो भी जो है पूरे हो चुके हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि 10 जनवरी से बाकायदा जो है एहतसाब अदालत में बेंच समाअत करेगा। जी, समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। शुक्रिया इरफान, आपने अपडेट किया।